सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट 20 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी प्रैक्टिस कराएगा, जो कि बेस्ट ही है। ठीक है। पीपल हु आर रफ, नॉट रिफाइंड, ऑकवर्ड एंड इल मैनर्ड, अनकूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स फ्रिक्वेंटली अकर इन जापान। इसका एंटोनिम बताना है, तो occasionally। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the last budget the government brought forward a new scheme of taxation। तो इसमें बताना है alternative। तो in the last budget the government brought forward or introduced a new scheme of taxation। Next question, you have worked industriously for the growth and development of the company, aren't you? ओके, तो ये वाला गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज करना है इसको। टू क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज नॉट नोइंग हाउ टू वेट थ्रू द रिवर दे डिसाइडेड to wade through the river. They decided to cross the broken bridge, not knowing how. They decided, first S, they decided to wade through the river to cross the broken bridge, not knowing how. या Q से start होगा, not knowing how to cross the broken bridge, they decided to wade through the river. Next question, he was more eloquent. He was the most eloquent speaker that I had ever heard. तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर एंड crawled up to the tree. The kind monkey offered him some of the delicious rose apples. Once there lived a monkey on the rose apple tree. They grew on the banks of river. That grew on the banks of a river. He told the monkey that he had traveled a long distance in search of food. तो ए के बाद तो डेफिनेटली डी होना चाहिए। तो once upon a time हो गया, once there lived a monkey, one day crocodile came, he told the monkey, and then C. Next question, some minds are so exceptional that they can change the world। एक्सेप्शनल का एंटोनिम पूछा है, तो ऑर्डिनरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, improve, the situation you are in is not different like mine। The situation you are in is not same, not dissimilar with me, mine। The situation you are in is not dissimilar with mine। The situation you are in is not dissimilar to mine। Next question, he was picked up by other older guys in school। He was picked at by older guys in school। He was picked on or picked at, picked on होना चाहिए। Next question, error, Mrs. Bhargav is a renowned scientist, but of his 4 daughters, neither has any educational achievement। Okay, C वाला। Next question, education plays a crucial role in breaking poverty। Crucial ये वाला, ये भी गलत है। Select the correct spelling for the incorrectly spelled word। अच्छा, education plays a crucial, गलत है, in breaking the cycle of poverty and child labor। Crucial सही है। Next question, error बताना है। रोहिणी brought 4 shoes on the Diwali sale at a great discount from the online shopping website। रोहिणी bought 4 shoes ठीक है, इसका भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट कर्ल्ड अप बिसाइड्स द वार्म फायरप्लेस प्योरिंग कंटेंटली।
तो inside the warm fireplace, beside the warm fireplace, the cat curled up the warm fireplace. ठीक है, next question. He said to Hari, when will you come? He said to Hari. He asked Hari, when will he come? Or when he would come. Next question. The sound of birds. Twitter. Next question. My boss maintained a very parochial view of the world. My boss maintained a very parochial view. तो सिमिलर वर्ड बताना है. पैट्रियार्कल. ओके, तो यही लगा है पैट्रियार्कल, पैरोशियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. और नैरो भी हो सकता है, हारमोनियस भी हो सकता है, पता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज द एंड ऑफ द टर्म एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग आउट ऑफ स्कूल. इट वॉज द एंड ऑफ द टर्म एंड द चिल्ड्रन वर getting out of control. Get out of it. Next question. Her skin broke down into a nasty rash after eating spinach at the restaurant. Her skin broke out. Next question. Forebode का synonym चाहिए. Referring. Next question. 25 years ago, few people realized that computers are about to become the part of our daily lives. That computers were about to become the part of our daily lives. This short period of time has seen enormous changes in businesses, education, and public administration. Jobs which took weeks to complete in the past are now carried out in minutes. People who spend all day copying and checking calculations are now freed from these bored tasks. Students have become as familiar with hardware and software as their parents were with pencils and exercise books. Computerization of public records has enabled government departments to analyze the needs of citizens in detail. Some of us may wonder, dash life has been really improved as a result of these changes. Some of us may wonder how. Some of us may wonder, for instance, life. Many jobs disappeared. For example, when intelligent machines took over the work, employers complained that clerical staff have become dependent on calculators. Okay, next. Yes. Submit the test. Submit. Okay, 40 out of 50. Wow. Solutions. तो इसमें फर्स्ट सही है कि जो इल मैनर्ड, ऑकवर्ड, जो रफ नॉट रिफाइंड ऑकवर्ड होते हैं उनको अनकूथ बोलते हैं. इसमें हमें अनकैनी में डाउट था. अनकैनी होता है स्ट्रेंज है, कुछ चीज़ मिस्टीरियस है तो अनकैनी बोलते हैं. अंडरडॉग है लाइक अ लूजर और प्रेडिक्टेड लूजर इन स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट. मतलब किसी को पहले से ही पता करना कि ये तो लूजर ही है. किसी कॉन्टेस्ट में पहले से ही पता चल जाना कि ये तो लूजर ही है तो उसको बोलते हैं अंडरडॉग है. अनकूथ तो पता ही है कि किसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. अनमैनर्ड पर्सन और अनअबेटेड मीन्स विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ. ठीक है, तो बस तो ठीक है. सेकंड भी आपका ठीक है. फ्रिक्वेंटली का एंटोनिम जो होता है वो ओकेशनली ही होता है. थर्ड का आपका ब्रॉड फॉरवर्ड का होगा इंट्रोड्यूस्ड. फोर्थ का आरंट यू नहीं होना चाहिए. इसका ऑप्शन आरंट यू की जगह हैवंट यू होना चाहिए बिकॉज हैव का यूज़ हुआ है. फिफ्थ क्वेश्चन भी ठीक है, ये वाला. हाँ ये ठीक है. सिक्स्थ का ही वॉज द मोस्ट होना चाहिए. ठीक है. और फिफ्थ सेवेंथ जो है वन डे, ये भी ठीक है. वंस ठीक है. सेवेंथ के बाद डी वाला एक्सेप्शनल का एंटोनिम आपको ऑर्डिनरी लगाया था, बट हम और भी देख लेते हैं वर्ड्स.
इसेंट्रिक जो होता है वो स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर। कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है कि वेरी नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफन इन अ वे दैट इज नॉट वांटेड। लाइक कोई कॉन्स्पिकुअस है, अटेंशन सीख करना चाहता है। नोटेबल है, डिजर्विंग अटेंशन। सेंट्रिक है, स्ट्रेंज है, तो हम सेंट्रिक बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो 8th के बाद आपका 9th जो था डिफरेंट, लाइक माइंड इज डिसिमिलर टू माइंड, सही था ये भी। 10th वाला पिक्ड अप नहीं होगा, पिक्ड ऑन होगा। Picked on means to lift someone or something using your hands. Picked at means to eat only a small amount of food. And picked off means to shoot people one by one from distance. ठीक है, तो 11th वाला भी ठीक है। Neither has any educational achievement, तो C वाला लगाया था। Neither has any educational achievement गलत है। Neither is used only with 2 person, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे डॉटर 4 डॉटर्स मेंशन किया है, तो नीदर नहीं आएगा, नन आना चाहिए। नीदर सिर्फ 2 लोगों के साथ यूज होता है। ठीक है, तो इसका होगा मिस्टर भार्गव इज अ रिनोन्ड साइंटिस्ट बट ऑफ हिज 4 डॉटर्स नन हैज एनी एजुकेशनल अचीवमेंट। 11th के बाद 12th है, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल का, ये गलत था। ठीक है, और क्रूशियल का मतलब है जो इम्पोर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट हो। हमारा 13th गलत हो गया, इसमें एरर बताना था कि रोहिणी बॉट 4 शूज ऑन द दिवाली सेल at a great discount from the online at a great discount or from the online shopping website। क्या होना चाहिए इसका गलत? ए, रोहिणी बॉट 4 शूज, तो रोहिणी बॉट 4 शूज में 4 पेयर्स ऑफ आना चाहिए, लाइक अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस। रोहिणी बॉट 4 पेयर्स ऑफ शूज। 13th के बाद 14th आपका बिसाइड द वहाँ फायर प्लेस होना चाहिए। बिसाइड्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम, और बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, बाय द साइड ऑफ। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, दोनों अलग अलग वर्ड्स। बिसाइड मतलब आपके साइड में ही, नेक्स्ट टू, हाँ, लेकिन बिसाइड्स तो ये है कि ये इसके अलावा ये। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। 15th वाला जो है उसका हमने ये लगाया था, he asked Hari when he would, कौन सा लगाया था? he asked Hari when he would come, हाँ ये लगाया था 15th वाला, क्योंकि वी विल वुड में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट को चेंज करते हैं, और आस्क्ड चेंज हो जाएगा, सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 15th के बाद 16th का साउंड्स ऑफ वर्ड को ट्विटर बोलते हैं। ट्विटर, आप ट्विटर चलाते हैं, वर्ड का पिक्चर बना हुआ है तो ट्विटर बोलते हैं उसको। वाइन, द साउंड ऑफ मॉस्किटोज, ओके, अच्छा मॉस्किटोज जो आवाज़ निकालते हैं उसको वाइन बोलते हैं। ग्रंट मीन्स द साउंड ऑफ पिग्स, और पाइप द साउंड ऑफ नाइटिंगल्स। ठीक है, तो ये अच्छा है कि पाइप होता है नाइटिंगल्स की साउंड, ग्रंट पिग्स की साउंड, वाइन मच्छरों की साउंड, और ट्विटर बर्ड्स की साउंड। 16 के बाद आपका 17 गलत हो गया। माई बॉस पेंटेड अ वेरी पैरोशियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड का होना चाहिए नैरो, यस। तो पैट्रियार्कल होता है कि आप सिस्टम ऑफ सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। हारमोनियस होता है फॉर्मिंग अ प्लीजिंग और कंसिस्टेंट होल, लाइक हारमोनियस, फॉर्मिंग अ प्लीजिंग और कंसिस्टेंट होल, लाइक सामंजस्यपूर्ण है, तो हारमोनियस। लेकिन यहाँ पे नैरो बता रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड है, संकीर्ण विचारधारा है उसकी, बॉस की। ठीक है, तो 18th वाला भी ठीक है, गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, गेटिंग आउट ऑफ हैंड, पेन। 19th वाला जो है ब्रोक डाउन होता है स्किन, सॉरी ब्रोक आउट होता है स्किन, और ब्रोक डाउन का मतलब होता है समथिंग है दैट हैज स्टॉप द फंक्शनिंग और फेल्ड, लाइक यहाँ पे ब्रोक डाउन हो गया, कुछ चीज़ फंक्शन ही नहीं कर रही। ठीक है, तो स्किन के साथ नहीं जाएगा। ब्रोक अप होता है कि सेपरेटेड इनटू पीसेस, और ब्रेक इन रेफर्स टू एक्ट और एंटरिंग, ब्रेक इन कर दिया पुलिस ने। और ब्रोक डाउन होता है दैट ये चीज़ फंक्शनिंग करना नहीं कर। 20th भी ठीक है, फॉरबोर्ड का रिफ्रेन होगा, लाइक फॉरबोर्ड मीन संयम, मीन्स द एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग और एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम समथिंग, रिफ्रेन करना, फॉरबोर्ड करना, रिफ्रेन करना। रील मतलब किसी चीज़ का आदर, सबमिट मतलब प्रस्तुत करना, सरेंडर समर्पण। 20th के बाद 21st वर आना चाहिए। 22nd सीन इनॉर्मस चेंजेस। 23rd गलत हो गया।
People who spend all day copying and checking calculations are now freed from these boring task होगा, बोरिंग टास्क होना चाहिए, नॉट बोर्ड टास्क होना चाहिए, और 24th भी गलत हो गया। However, life has really improved. Some of us may wonder, however, आना ही चाहिए CCs। तो ठीक है, इतने ही गलत थे। आई होप आपने ये टेस्ट दिया होगा, एंड प्लीज़ आप अपने स्कोर्स को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाती रहूँगी। आप मुझे सब्जेक्ट्स बता सकते हैं, लाइक कौन से एग्ज़ाम के लिए करना है। तो ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।